नसीब अज़्म इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां ना हुआ। जो बच्चे 35 मार्क्स लेके पास हुए थे सेकेंड पीयूसी में, वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं डिग्री फाइनल ईयर। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಂಥ ನೋಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದಿದ್ರು, ಹಾಗೂ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದರು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಹಂಸ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ನಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಳೆರಾಜ ಚಂದ್ರಜಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ನೋಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಜನ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 5 ಜನಷ್ಟು ಅಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಳೋಣ. ಅದು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮದು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ DGLಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು PUC ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ IT ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ SLC ಆದಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ DGL ಆಗಲಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ITI ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, SLC ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ITI ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ವಾದನೆ ಆಯಿತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, IT ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ DGLಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2.5 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು ಕಾವಲ್ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ, ಈ ಪುಲಕೇಶಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿ ಬಡವರಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣುಮಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ತರಕಾರಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಡತನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಾನು ನೋಮನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रही है. सिर्फ रूटीन एजुकेशन से ही एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होता, उसके साथ साथ जैसे कि आज हमें देखा गया कि एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेड क्रॉस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तालीम और ट्रेनिंग दिलाने की वजह से क्या होता है, एक स्टूडेंट एक मुकम्मल सिटीज़न बन के बाहर निकलता है. ये बहुत ज़रूरी है. और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ बीए करे, डिग्री करे या डिप्लोमा करे उससे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. हर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सारी खूबियाँ हासिल करना बहुत ज़रूरी है. वो काम हमारे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल नौमान मंजूर साहब के सरपरस्ती में बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत ही खुशी होती है. मैं मेरी दिली तमन्ना और मेरी ये शुभकामनाएं इनको आगे आने वाली ये सारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को और प्रिंसिपल साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज पुलकेशरी नगर के इलाके में वाक़ है. हालांकि आरटी नगर से मुल्हक़ ये इलाका है, लेकिन जो एमएलए आते हैं इसके लिए वो पुलकेशी नगर के जो एमएलए होते हैं वो यहाँ की सीडीसी के चेयरमैन होते हैं. और हमारे पास उन बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है जो 35 मार्क्स लेके पास हुए हैं सेकेंड पीयूसी में. और ऐसे बच्चों को भी हम नहीं छोड़ते जो फेल हो के अटेम्प्ट्स लेके पास करते हैं. और हमारी कॉलेज की ये स्पेशलिटी है कि वही बच्चे फर्स्ट ईयर डिग्री में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखाई देता है. और उनके पीछे हमारे टीचर्स इस तरह मेहनत करते हैं कि उनका ग्राफ चढ़ता ही जाता है. जो बच्चे 35 मार्क्स लेके पास हुए थे सेकेंड पीयूसी में वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं डिग्री फाइनल ईयर. और उनको हम जॉब मेले के ज़रिए बेहतरीन जॉब्स भी फ्राहम करते हैं. हाल ही में हमने मिनी जॉब मेला भी मुनक़द किया, जहाँ से बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ और बेरोज़गार बच्चों के लिए एक हसीन और ज़रीन मौका. और ऐसा ही नहीं, हमारे कॉलेज में ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे कंप्यूटर का शोबा हो, चाहे अंग्रेज़ी बात करने का शोबा हो. तो हर शोबों में हम बच्चों को बहुत ही तवज्जो के साथ उनको आगे बढ़ने की तरफ तरगीब दी जाती है, उनको आगे ले जाते हैं. गुज़िश्ता साल भी हमने बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी में मजमूई टीम चैम्पियनशिप हासिल की बेस्ट फिज़िक्स में, और कई गोल्ड मेडल्स हासिल किए जिसमें लड़कियां भी थी. हमारी कॉलेज की लड़कियां भी पीछे नहीं हैं. और इस मरतबा भी हमने टीम चैम्पियनशिप हासिल की, 2 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज के साथ. और हमने हाल ही में चेस कंपटीशन का इनकाद किया था बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी के लिए. उसमें 80 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया. और उन पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल, और उन्होंने जहाँ हमारी कॉलेज में जो इंतज़ाम और इंसराम था उसको देखकर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि काश कि मैं भी इस कॉलेज में दाखिला लेता. तो हर कोई जो यहाँ आता है, चाहे लीडर्स हो, चाहे असातिज़ा हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे माहिरीन हो, तो यहाँ के माहौल से वो बहुत मुतासिर होते हैं. और हमारे नताइज से ख़ासकर न्याक वाले तो इतने मुतासिर हुए. तो आपने देखा कि ये ग्रेड हमारे कॉलेज ने हासिल किया. और हमारे पास हर कोई काबिल उस्ताद है, बहुत सारे PhDs हैं. चंद एक हैं जो अभी कर रहे हैं और करीब में वो भी PhDs हो जाएंगे. हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर तिम्मेगौड़ा भी बहुत ही फ़आल हैं. हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है. कई कॉलेजेस के लाइब्रेरियंस
हमारे पास आते हैं, इस लाइब्रेरी को देखकर वो भी इस तरह की लाइब्रेरी कायम करें। पूरा अपडेटेड हमारे पास, और हम बहुत सारे मैगजीन्स के, बहुत सारे ऐसे मैगजीन जो बहुत कॉस्टली होते हैं उसके भी ख़रीदार हैं ऑनलाइन। तो 80-80 हज़ार रुपये उसके फ़ीस होती है सालाना। तो इस तरह के पूरी सहूलियात जो तलबा के लिए हो, असातिज़ा के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, तो हमारे कॉलेज में वो किसी तरह का फुकदान नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, आगाज़ होता है, मुख्तलिफ मुकाबले भी होते हैं, इंटर कॉलेज भी होते हैं, फिर इंटर क्लास भी होते हैं। हमारे तलबा ने कई प्रोग्राम्स में, कई मुकाबलों में जो मुख्तलिफ कॉलेजों में हुए हिस्सा लिया है और अव्वल मकाम हासिल किया है। गज़ल में हाल ही में हमारा एक तालिब इल्म एजाज़, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, नामी गिरामी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो उन कॉलेजेस के साथ मुकाबला करके पहला इनाम हासिल किया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र व इफ्तिखार की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां ना हुआ। नसीब हमारा, हम जब कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो तभी हमारा नसीब में जो लिखा है हमें हासिल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रहकर बढ़ जाएं तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। नसीब भी हो, उसके लिए कोशिश हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऊँट को बांध कर भरोसा करना चाहिए, ऊँट को खड़ा छोड़कर भरोसा नहीं। यानी कि हमारे जानिब से जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश हो, उसके बाद हम नताइज का, बेहतरीन नताइज का हम क़यास कर सकते हैं, बेहतरीन नताइज की उम्मीद कर सकते हैं। और हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हमें हमारे पास नताइज हम देख रहे हैं और खुशी का माहौल है। मैं आप तमाम जो आए हुए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और उन बच्चों को भी। और हमारे कॉलेज की एक और स्पेशलिटी है कि हमारे असातिज़ा और मैं भी खुद, कई गरीब बच्चे आते हैं जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ किसी के घर में काम कर रही होती है, उनके लिए भी फ़ीस का इंतज़ाम हमारी हैसियत के मुताबिक करते हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये हमारे कॉलेज के असातिज़ा की जानिब से फ़ीस के तौर पर बच्चों में तकसीम हुए हैं। ये हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी है। वो बच्चे जो फ़ीस पे करने के वो अहल नहीं होते, उनके आंखों में आंसू रहते हैं, किसी वजह से वो तालीम को मुनक़ता कर देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, दरमियान में तर्क कर देना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों की मदद करके उन बच्चों को हमने इस तरह की तरबियत दी कि वो डिस्टिंक्शन में आते हैं, अच्छे काम। तो इस तरह हम एक बच्चे का खड़ा हो जाना एक ख़ानदान का खड़ा हो जाना। और हमारी कॉलेज कोई लड़कियों की तालीम का भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम है। बीकॉम में जो सेक्शंस हैं वो लड़कियों के लिए अलहदा मुख्तस हैं। तो यहाँ किसी तरह का माँ बाप सोचते होंगे यहाँ गो एजुकेशन है, बच्चों को भेजते हैं तो कुछ हमारे बच्चियों के लिए ख़तरा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरे हिफाजत के साथ और पूरे पर्दे के साथ, और हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो इस तरह कोई मसला भी नहीं है। तो बहरहाल इत्मीनान के साथ अपने माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहते हैं। ये सरकारी कॉलेज है, फ़ीस बहुत कम है। सरकारी कॉलेज में एक प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा बेहतर तौर पर यहाँ तालीम दी जा रही है, और यहाँ के काबिल असातिज़ा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो किसी तरह का उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, ख्याल करने की ज़रूरत नहीं, और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, दाखिला दिलवा सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत कम फ़ीस, मीगर फ़ीस, बहुत कम फ़ीस, प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले में कुछ भी है ही नहीं, ऐसी फ़ीस में हम तालीम बच्चों को फराहम कर रहे हैं। सर एक सवाल है, जहाँ पर जो है माहौल ये बना हुआ है कि सरकारी स्कूल हो या सरकारी कॉलेज हो, वहाँ पर तालीमी स्तर जो है बहुत ही निचला होता है, इस तरह का माहौल बना है। इस माहौल में कहाँ तक मुमकिन है जो आपके नताइज है, किस तरह मुमकिन हो पाए, वो की क्या है, हमारे नाज़रीन जो है जानना चाहेंगे। देखिए, पहले से हमारे अंदर तस्वुर बढ़ गया है कि गवर्नमेंट सरकारी कॉलेजेस या स्कूल्स हों वहाँ नताइज नहीं आते, असातिज़ा काबिल नहीं रहते, लेकिन हमने इसकी नफ़ी की है, इसको गलत साबित किया है। आप हमारे यहाँ रिजल्ट्स को देख सकते हैं। इसी वजह से पूरे रियासत में 432 सरकारी कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेज को 3rd साइकिल में NAAC के ये ग्रेड मिला। ये जो तस्वुर है प्राइवेट कॉलेजेस में ही तालीम अच्छी दी जाती है, ऐसा नहीं है। आप आके देखिए, लैब्स हमारे देखिए, हमारे क्लासरूम्स देखिए, हमारे क्लासरूम किसी भी प्राइवेट कॉलेज के क्लासरूम से कम नहीं है। वहाँ पर जिस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके असबाग दिए जाते हैं वो है,
और हमारी डिपार्टमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, हमारे कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, इनकी जानिब से LMS का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। पूरा मवाद उनको इंटरनेट के ज़रिए मिल रहा है, और जो बच्चे इंटरनेट बाई करने के हल नहीं होते उनके लिए डाउनलोड की सहूलत, वाईफाई की सहूलियात है हमारे कॉलेजेस में। तो सरकारी कॉलेज पहले के जैसा नहीं रहे, सरकारी इदारे पहले के जैसे, यहाँ तो एक इनकलाब आ चुका है, एक तब्दीली आ चुकी है, चेंजेस आ चुके हैं। प्राइवेट कॉलेज से सरकारी कॉलेज कम नहीं है, और मुतमईन होकर माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवा सकते हैं।